हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेम 4 SEC 2 डॉक्यूमेंट्री डेफिनेशन। मोशन पिक्चर दैट शेप्स एंड इंटरप्रेटेड फैक्चुअल मटेरियल फॉर purpose of education or entertainment. Documentaries have been made in one form or another in nearly every country and have contributed significantly to the development of realism in film. It is a type of film that is based on real world and real people, depicting things as they are or telling about historical event in a supposedly truthfully or objective manner. Or they say that it has to be do with a certain realism of a style, and that is filming on some real location without actor, artificial prop और constructed narrative. डॉक्यूमेंट्री में आपका सारा चीज़ रियलिज्म होता है, उस पर फैक्ट्स होते हैं, उसमें जो रियलिटी होती है सब कुछ ट्रूथवर्दी होता है। आप में उसमें कोई प्रॉप्स को क्रिएट नहीं करते हो। यू कैंट मेक अ proper dialogue script or actors, no props. There's everything, whatever you see in on screen is all real. That is called documentary. These are types of documentary: poetic documentary, expositor documentary, observational documentary, participatory documentary, reflexive documentary, performative documentary. Shooting style. Knowing the story. During the pre-production phase, I learn all I can about the story I plan to tell, whatever it is, a corporate promotional film or a personal profile. I get as much information as I can about the people, place and event related to the film. आपको जब भी आप whatever you make a documentary, you have to do the research work, जिसमें आप उस जो भी हिस्टोरिकल है या फिर उसका जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप उसको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं और देन यू मेक अ स्क्रिप्ट। तो आपको शूटिंग समय सबसे पहले आता है यू शुड नो योर स्टोरी। सेकेंड, क्रिएटिंग अ शॉर्ट लिस्ट. As much as possible, I determine ahead of time to shows I want to get to tell the visual story I want to tell. Naturally, a big part of what I plan to shoot will be based on sound bites I get during the interviews, but the more I know up from what I will be shooting, the more shoot I can plan ahead of time. Same as it is, shoot is like a script, mind the metaphorical. Music is key. Important होता है, music is very important in editing process, and it's make a real tone or touch or emotion to the interview is important in documentary. A steps for shooting a documentary interview: first, selecting the interview space where you go for interview, preparing your subject, where he said, how he speak, how he look. It is important for the interview, how you make your subject making, placing, and supposing it look like. Subject background separation. uh, you have to make the 3D impact with the light, because if you did not, I told you before the what kind of 3-point lighting it is for the interview is also you need to give the background light different and backlight different, so that the subject background will be separated and your subject will more appear than before it. Okay. Rule of third. Yes, interview is always be in rule of third. You know the photography skill or framing skill. Rule of third is very important. Lighting, I said before, 3-point light is very important for the framing the interview. Recording audio. Yes, you are going to interview a person, so the whatever he tell, it is very important for your documentary. So voice recording
आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के करनी है कि कैसे आप कहाँ पर कैसे माइक प्लेस करोगे और उसके किस तरह से विदाउट वाइब्रेशन विदाउट नॉइज आपकी आवाज़ अच्छे से कवर हो सके। और आई विल शो वन लिंक, you should go through this and you'll know the better how to shoot your documentary interview. Everyone know shooting a documentary or film, there are three process: pre-production, production and post-production. So pre-production have research work, write rough draft of a script, because just documentary में आपका ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिख कर चाहते हो वही शूट करो, बट यू शुड प्रिपेयर। पहले आपको लिख लेना चाहिए ताकि आपके दिमाग में आइडिया रह सके कि आप जाओगे तो आप ये चीज़ें मिस ना हो, क्योंकि जो आप रिसर्च वर्क में करके जा रहे हो वो चीज़ें तो आप लिख के जाओगे कि वो मिस नहीं होनी चाहिए, तो वो आप लिखोगे एज अ स्क्रिप्ट। बट अगर वहाँ जाते हो तो यू नो डिफरेंट थिंग्स, आपको कुछ नई चीज़ें भी मिलती है तो आप उसको भी कवर करते हो। तो डॉक्यूमेंट्री इज़ ओपन फॉरम, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक अगर आप बोलोगे तो आप 30 मिनट की रिकॉर्डिंग करोगे तो हो सकता है उसमें सिर्फ 1 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बन जाए, और या फिर 1.5 या 2 मिनट की, या फिर आप मुश्किल से 5 मिनट्स की निकाल सकते हो। लेकिन आपको जितनी ज़्यादा फुटेज रहेंगे उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री बनती है। ओके, शूटिंग प्लानिंग डे भी आपके प्री प्रोडक्शन में आता है कि आपको कितने दिन की शूट करनी है, कहाँ कहाँ शूट करनी है, कब शूट करनी है, वो पूरा शूटिंग का प्लानिंग करना होता है। बुकिंग, रिजर्वेशंस, ये सारे भी बहुत प्री प्लान्ड होते हैं कि आपको कैमरा, टीम को, या फिर आपका लोकेशन जहाँ है वहाँ पे अगर किसी परमिशन की ज़रूरत है तो वो एवरीथिंग जो भी है आप सबको पहले बुकिंग करते हो, उसके लिए आप परमिशन लेते हो, आप ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपका प्री प्रोडक्शन के अंदर आती हैं। ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट है जिसमें आपका सबसे पहले सीरियल नंबर जाएगा, उसके बाद स्क्रिप्ट या डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहते हो, क्योंकि आप रिव्यू अगर लिख रहे हो वो आप दे सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन जो आपने रिसर्च वर्क किया है वो दे सकते हो कि इस तरह का मैंने रिसर्च वर्क किया है, इसमें किस तरह के वीडियोस जानी है। आप लोकेशन दोगे कि वो कहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, एंड फिर ऑडियो आप किस तरह के ऑडियोस में डाल सकते हैं। ये आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्टिंग का स्टाइल। उसे लिखते हो, यू राइट अ प्रपोजल फॉर अ चैनल और प्रोडक्शन हाउस or producer, anyone. You can make a proposal for any person, give the fund for making your project, or after making your project you can sell for making the proposal. So there are some points जो आपको ध्यान रखनी है जब आप प्रपोजल बनाते हो। द फर्स्ट वन इज लेटर टू प्रोडक्शन हाउस और चैनल। जो भी आप एक लेटर लिखते हो, जैसे एक फॉर्मल लेटर लिखते हो टू द प्रिंसिपल, टू द टीचर, वट एवर, वो एक सिंपल फॉर्मेट है जिसमें अपने सब्जेक्ट लिखना है, आपको जिसको देना है आप उसको सर, आप मैम करके इस तरीके से चैनल हेड आप उसको दोगे, और नीचे में अपने कंटेंट के साथ रिक्वेस्ट भेजोगे। उसके बाद फिर आपको सिनॉप्सिस देना है। सिनॉप्सिस काइंड ऑफ स्मॉल कंटेंट जो आपका बताता है पूरी स्टोरी को कि क्या आप डॉक्यूमेंट्री में दिखाना चाहते हो, क्यों दिखाना चाहते हो, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। सिंपल में आपको बहुत छोटा सा लिख के देना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्री का पूरा स्क्रिप्ट उसमें नहीं होता है, वो इस ब्रीफ हिस्ट्री रहती है, उसमें ब्रीफ उसका इंफॉर्मेशन रहता है। जो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वही प्रपोजल का मेन पेज है, वही आपको अट्रैक्ट करता है, लोगों को बाइंड करता है कि यस आई हैव टू मेक दिस, मुझे इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं, ठीक है, स्पेंड करना चाहिए नहीं, ठीक है। शूटिंग शेड्यूल में आपका क्या है कि आप उसमें पूरा प्लानिंग बताते हो, मेरी कितनी डेज की शूट है, उसको मैं कहाँ का शूट करूँगा, कैसे शूट करूँगा, ठीक है, ये आपकी शूटिंग शेड्यूल रहेगी। फिर लोकेशन डिटेल आप देते हो कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह पे जाते हो तो आपको लोकेशन डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका फंड इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है वो लोकेशन डिटेल से ही पता चलता है। क्रू एंड टीम, ये यस दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कितनी अच्छी टीम आप हायर कर रहे हो, कितनी अच्छी टीम है आपकी, जिससे आपका ये उनका प्रोफाइल लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप किसी नेशनल अवार्डेड पर्सन को लेते हो जो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, जो इसमें एक्सपर्ट है, तो उसका आपका प्रॉफिट मिलता है और लोग उसको ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं। तो उस आपके क्रू और टीम का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप जब प्रपोजल बनाते हो। उसके बाद है नेक्स्ट बजट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बजट के बिना आपका प्रपोजल अधूरा है। आप फाइनेंसर के पास जा रहे हो और आप बताओगे नहीं कि मेरा कितना पैसा खर्च होगा इस प्रोजेक्ट में,
तो वो प्रपोजल को सैमसंग कैसे करेगा? मार्केटिंग। यस, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उसको मार्केटिंग आइडियाज भी देने चाहिए कि आप कहाँ पर किस तरीके से इसको पब्लिसाइज कर सकते हो, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सके या खरीद सके, या जो भी आपका डॉक्यूमेंट्री का आप यूटिलाइज करने वाले हो। पब्लिस्ट, यस, पब्लिस्ट में अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो आप कहाँ दिखा रहे हो? जस्ट एग्जांपल आई गिव यू कि आप एक छोटे बच्चे के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो किसी एनजीओ के थ्रू या किसी गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू या किसी भी चीज़ में, तो फिर आप अपने किसी न किसी जब ब्रांच में आप स्कूल्स में जाओगे वहाँ पर पब्लिश करोगे, तो जब आप प्रपोजल देते हो तो आप ये बताते हो कि आप स्कूल में दिखाओगे, कौन कौन से स्कूल दिखाओगे, कैसे आपका पूरा पब्लिशिंग का प्लान होता है वो आप उसमें बताते हो। बजट में आपका दो तरीके से आता है, एक अबव द लाइन और एक बिलो द लाइन। अबव द लाइन में आपका प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन आता है। प्री प्रोडक्शन के बारे में मैंने बता चुका है, तो उसमें जितने भी एक्सपेंसेस खर्च होते हैं, रिजर्वेशन में, स्क्रिप्टिंग में, रिसर्च में, जो भी चीज़ें, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे प्री प्रोडक्शन में आते हैं। शूटिंग प्रोसेस के दौरान जितने भी, जैसे क्रू मेंबर्स हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे फूडिंग हो, लॉजिंग हो, वो सारी चीज़ें आपका, या इक्विपमेंट पे खर्च हो, जो भी चीज़ें, वो सारा जो है वो आपका प्रोडक्शन में आता है, तो आप उसका अलग चार्ट बनाते हो, ठीक है। पर ये दोनों क्या होता है, अबव द लाइन में। तो बिलो द लाइन इज द ऑल पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। जब आपका शूटिंग और प्लानिंग सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, आप शूट करके अपने पास अपने रॉ मटेरियल ले आते हो, देन आपका बिलो द लाइन का स्टार्ट होता है, जो कि आपका पोस्ट प्रोडक्शन है। पोस्ट प्रोडक्शन में आपका क्या होता है, सारा कंटेंट को वो आप एडिटर का जो फी होता है वो, आपका पब्लिशिंग का, एडवर्टीजमेंट का, मार्केटिंग का, जितना भी खर्चा उसके बाद होता है एडिटिंग से लेकर पब्लिश होने तक, वो सारा आपका पोस्ट प्रोडक्शन में बजट में आप लिखोगे। इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा। ओके, आपके पास मेरा नंबर है, यू नो, एंड एवरी काइंड ऑफ जो भी आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कॉल मी और I will give you all content. Let's work hard together. All the best.